Last year when we called off the examination, it was only because of the pandemic, and now when we are reaching to the examination, pandemic is with us. Sometime it is means number is increasing, sometime it is going down, but no one has come out even after so many vaccines have been in the market, and each and every government is working very hard and provided the education in the best possible manner. Now, the experience of online learning was also not very good, I would say. It was because no one was aware that we are going to face this pandemic. And in the presence of the pandemic, when we started facing it, we have evolved to face it also, become the invigilator. But in my opinion, no one was able to reach to that height at which our schools are functioning in the means during the examination. So parents during that period have were a little bit lenient, and students have taken the lead, and they have taken the support from the other material, and then they have appeared in the examination. So looking into it, I thought that because class 12th is the biggest sufferer, and they are not going to get this life once again, because all the students who are studying in class 12, they become best friends for the life. And all the good ceremonies are taking place during this period. Head boy, head girl, farewell, welcome, all things are over there. And what Pankaj sir has said, that instruction has already been given by me to each and every regional officers of mine, all 16 regional officers, that okay, no, you should increase the number of centers in such a manner that at one point of time there should not be more rush. There should be only 12 students in one classroom, and because as per our norms, 40 square meter classroom area is required, and in 40 square meter area we will be permitting only 12 students. So 12 square meter area would be over there. So first initiative is that we are going to increase the number of centers, and because this has been decided, and therefore we are taking a little bit more time in generation of roll number also, because I am looking into the center notification personally from each regional office, so that there is no problem at all. Where therefore we have increased number of centers up to a large extent. But I can assure to each and every one of you that we will see. And even after allotting the center, if you find that no, there need to be some changes, you just let me know. I will do the needful. As far as the fixing of the self center is concerned, I am of the view that fixing the self center could raise the issue not in your countries, but certainly in my country, where people might be using this facility as space saving measure, because they can exceed to their limits, and then they can assist to their students also, and we will be getting lot of requests or the complaints from the schools or from other people. So the day sheet has been prepared in a very good manner. Moreover, what was decided by me, because I wanted to utilize lesser time, so I had identified certain subjects which have not been offered in any of the foreign countries. Practical examination, because we would be requiring the roll number for uploading of the marks of the candidates. So what has been done while issuing the circular and the information from our side, we have stated that a batch of 25 candidates can also be divided into two subgroups, and you can conduct the examination, practical examination of these two groups separately. So what will happen, that there won't be any rush in the laboratories, and you need to upload the marks of both the subgroups at one time only, and that is very important. The another thing is that we have spent the time of conduct of practical examination also from 1st of March to 11th of June. This is a very big window. This is also because, say, if we are assigning 6 schools to one examiner, so he can't conduct. तो आप सभी के सामने ये वीडियो था जिसमें कि सीबीएसई एग्ज़ाम ऑफ कैंटोनल मिस्टर सय्यम भारद्वाज ने
इस जूम मीटिंग में एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी बातों को लेकर डिस्कस किया। तो उन्हीं सब बातों को पूरा वीडियो देखने के बजाय यदि जो मेन जो डिस्कशन उनका था उसको यदि हम ब्रीफली डिस्कस करें तो हमें एक बड़ा आइडिया लग जाता है आने वाली सीबीएसई के 10th और 12th एग्ज़ाम्स को लेकर। तो पहला जो उनका डिस्कशन था, मेन पॉइंट था कि जो सिंपल सा जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी भी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग की जाएंगी, जैसे कि आपको मास्क कवर लगाना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन लर्निंग में मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो प्रॉपर रही है, उनको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम लॉस नहीं हुआ है, कोई लर्निंग ब्रीच इस प्रकार से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इससे परेशानी हुई होगी और ऑनलाइन लर्निंग थोड़ा लेट भी शुरू हुई है, तो हमने 10th और 12th में सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया है। जो अगला की पॉइंट था उनका ये था कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड रिसोर्स नहीं रहे हों, तो उनकी जो लर्निंग के अंदर जो गैप है उस गैप को कवर करने के लिए ज़्यादातर स्टेट्स में स्कूल्स हैं उनको जनवरी के मंथ से री ओपन कर दिया गया और इसीलिए हमने एग्ज़ाम्स को इतना लेट किया है, ताकि ऐसे बच्चे जो कि रिसोर्स क्रंच के कारण ऑनलाइन लर्निंग में ऐड ऑन नहीं हो पाए या ऑनलाइन लर्निंग को अटेंड नहीं कर पाए, तो उन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जैन से उनकी स्कूल्स को ओपन कर दिया गया है और जून में एग्ज़ाम इसलिए रखी गई है ताकि वो अपने सिलेबस को कवर कर सकें टीचर्स की हेल्प से। साथ ही उन्होंने पहली बात की है कि जो ऑनलाइन जो बार बार बात आ रही थी कि स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ली जानी चाहिए, जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, तो उसके बारे में उनका ये मानना है कि मैंने बहुत सारी स्कूल्स में टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स ली हैं और उन मीटिंग्स में हमने देखा है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन हुई है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहे आपकी प्री बोर्ड्स की हो या हाफ ईयर एग्जामिनेशन हो, उन सब में पेरेंट्स से ये आशा की गई थी कि वो एक स्ट्रिक्टनेस रखेंगे अपने बच्चों के ऊपर और वो एक तरह से ऑब्जर्वर का काम करेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में टीचर्स और प्रिंसिपल्स का ये मानना है कि पेरेंट्स अपनी उस ड्यूटी को नहीं निभा पाए और कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी का इशू रहा है उसमें कि जिस पर, तो इसलिए उस रिलायबिलिटी के इशू को लेकर उन्होंने मतलब पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिसाइड किया कि एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी, ऑनलाइन मोड में नहीं होंगी, क्योंकि उनका ये मानना था जो फीडबैक सीबीएसई को मिला है वो फीडबैक इतना पॉजिटिव नहीं रहा है ऑनलाइन लर्निंग को लेकर। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका मैसेज ये रहा है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स से वो मानते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट फेज़ था, उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फेज़ था और जिसमें बहुत सारी चीज़ों ने इस एपिडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ों को खो दिया है। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि यही वो साल होता है जब बच्चों को स्कूल के अंदर हेड बॉय हेड गर्ल बनने का मौका मिलता है और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिसमें 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे स्पेशली उन चीज़ों को लीड आउट करते हैं और ये लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो उन बच्चों को एक ही बार मिलती है, तो वो ये सब चीज़ें उन बच्चों ने अपनी इस सेशन के बच्चों ने वो इन चीज़ों को मिस कर दिया, ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। अगली बात उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि ज़्यादातर अभी भी लगातार ये इशू चल रहा था कि ये इस पर क्या सीबीएसई इस कोविड सिस्टम में पेंडेमिक के कारण होम सेंटर सिस्टम को बनाने जा रही है, तो इसके लिए भारद्वाज साहब ने साफ साफ मना किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि सीबीएसई कोशिश ये कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैक्सिमम स्कूलों में सेंटर्स को बढ़ाया जाए। लास्ट ईयर जितने सेंटर्स थे उससे ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाएँ। साथ ही उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी रखी हैं कि एक क्लास के अंदर जो 12 बच्चे हैं उन 12 बच्चों को ही बैठने की परमिशन दी जाएगी, यानी कि एक क्लासरूम में ओनली 12 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक ऑन द एग्ज़ाम। इसके अलावा रूम की साइज़ है वो उन्होंने बताई है कि नॉर्मली सीबीएसई ने डिसाइड किया कि 40 स्क्वायर मीटर का रूम है उसके अंदर 12 बच्चों को बैठने की परमिशन दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कवरअप की जा सके। साथ ही उन्होंने बोला कि सीबीएसई है वो टोटल 16th रीजनल सेंटर हैं जिसके थ्रू एग्जामिनेशन करवाती है और इस साल सीबीएसई के पास 10th और 12th के मिलाकर अराउंड 34 लाख कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई के पास। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अभी हम रोल नंबर इसीलिए जारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स को बढ़ाया जाए। लेकिन होम सेंटर की जो बात थी उसको उन्होंने स्पष्टतः इनकार कर दिया कि किसी भी बच्चे को होम सेंटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्फिडेंस जो ब्रीच होता है, जो जो होम सेंटर होता है वहाँ पर पुराने समय में भी देखा गया है कि बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल एडवांटेज स्कूल की तरफ से या किसी और तरीके से मिलने की संभावनाएं रहती हैं, तो उन्होंने होम सेंटर की बात को पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने बोला कि कोविड को ध्यान रखते हुए हम कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जो सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के बीच जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो प्रैक्टिकल्स की डेट है वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर हमने जून तक का टाइम रखा है और अभी
मार्च आने वाला है, 1 मार्च से जून तक प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन मार्च में प्रैक्टिकल इतनी जल्दी शुरू इसलिए नहीं हो पाएंगे कि अभी भी सीबीएसई पूरी तरीके से रोल नंबर जो स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं कर पा रही है। और रोल नंबर अलॉट नहीं कर पाने के पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया वो सिंपल सा ये था कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर्स को किस प्रकार से मैक्सिमाइज किया जा सके, तो उसके लिए हम सारी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इसी उन्होंने दिया कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पूरी तरीके से एश्योर करने के लिए उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक वो एक नई गाइडलाइंस के साथ आएंगे, जो कि सेंटर्स में जो जहाँ भी इस बच्चों का सेंटर होगा वहाँ पर उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और साथ ही ध्यान ये भी रखा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर सेंटर को लेकर यदि पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डायरेक्टली सीबीएसई से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो भी ग्रीवेंस हैं उसको पूरी तरीके से सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसको इतना लंबा स्पेन में इसलिए रखा गया है कि इस बार जो एक एग्जामिनर है उसको 6 स्कूल्स अलॉट की गई हैं। और साथ ही जो प्रैक्टिकल के बैच जो कि पुराने टाइम में 24 स्टूडेंट्स एक साथ प्रैक्टिकल देते थे, इस साल ओनली एक बैच में 12 स्टूडेंट्स ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी थोड़ा लंबे चलेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल को इतना टाइम फ्रेम किया गया है। साथ ही उन्होंने जो न्यू सेशन की बात की कि नया सेशन सभी क्लासेज के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल के बाद शुरुआती जो 2 महीने हैं उसमें उन्होंने ब्रिज कोर्स चलाने की बात की है। ब्रिज कोर्स का उनका ये मानना था कि ब्रिज कोर्स के अंदर जो लर्निंग गैप जो रह गया ऑनलाइन एजुकेशन में, उस लर्निंग गैप को कवर करने का एफर्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि तो प्रैक्टिकल्स के लिए कि उनको अभी चिंता नहीं करनी कि रोल नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसा सिंपल से उन्होंने बोल दिया कि अभी रोल नंबर अलॉट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी भी जो सेंटर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की वो है कि होम सेंटर से रिलेटेड जो भी अफवाहें चल रही हैं कि इस साल बच्चों को होम सेंटर ही अलॉटेड होगा, तो उसके लिए तो उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि कोई भी होम सेंटर बच्चों को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने डेट शीट को लेकर भी बात की कि डेट शीट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि कभी भी पर्टिकुलर सेंटर पर एक साथ इतने ज़्यादा बच्चे कलेक्ट ना हो पाएँ। और इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी गाइडलाइंस से भी बात की कि सेफ्टी गाइडलाइन में किसी भी बच्चे को जो भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कई सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि होम सेंटर से उनको कोई एडवांटेज मिल जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। हर बच्चे को जैसे पुराने समय में जो सेंटर अलॉट होते थे उसी प्रकार से सेंटर अलॉट्स किए जाएंगे और उसके बाद उसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय।